हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पेज किड्स लर्निंग क्लासरूम स्टाइल। मैं शिखा और आप सबको मेरा जय श्री श्याम। Hope you all are doing good. So today's subject is science, and the chapter that we had started the last video was materials and solutions. And in this chapter we have so far covered what is a matter, what is a non-matter, the difference between a matter and a non-matter, what are the changes that takes place in the three forms of matter when they are exposed to heating and when they are removed from heating, and how do their particles move when they are exposed to heating. So these are the things that I had explained you. So the solid, generally, how does it how are the molecules in a solid form packed? They are packed very tightly where there is no space for the molecules to move. The liquid, as compared to solid, the molecules are packed a little loosely, and in gaseous, compared to liquid, they are more loosely packed, and therefore there is a lot of space for the molecules to move in liquid and the gaseous form when there is any substance which is in their liquid and their gaseous form. Yes, then we had discussed about the changes that happens when these substances in its individual forms are exposed to heat. So heating and cooling basically affect the movements of these particles in matter. The particles move very fast when they are heated, and the particles move slowly when they are cool. And there are totally 6 processes that takes place when these states of matter. So when any substance or when any matter changes from solid to liquid, the process is called melting. Where a liquid changes its state from a liquid to solid, it is called freezing. When the matter changes its form from liquid to gas, it is called evaporation. From gas to liquid, it is called condensation. From liquid to solid, it's called deposition. And from gas to solid is called deposition, and from solid to gas it's called sublimation. And in detail we had studied about evaporation, melting and condensation with examples. Today we will discuss about the freezing or solidification. So the process where a liquid changes into solid when heat is removed is called solidification. So when any liquid form is changed to a solid form, that becomes a solidification or freezing. Solidification of liquids, and this happens when the heat is removed. Solidification takes place when they are exposed to freezing, and the very good example of it is ice. So the example is when we pour water into an ice tray and keep it in the freezer, we can see that water changes into ice after some time. Then what is sublimation? So the process wherein the solid changes directly into gas without becoming a liquid first is called sublimation. Example is camphor, mothballs, perfume, etc. कैम्फर को हम कपूर कहते हैं, mothballs को हम naphthalene balls भी कहते हैं. अगर कभी कैम्फर को देखेंगे तो वो क्या होता है, वो एक सॉलिड फॉर्म पे जब भी हम उसे बर्न करते हैं तो वो क्या है, गैशियस फॉर्म में हो जाता है. उसमें से जो है बहुत धुआं निकलता है, एंड देयरफॉर इट चेंजेस टू द gaseous form. Similarly, what is deposition? So it's basically the reverse of sublimation. So the opposite of sublimation, where a gas changes directly into a solid, is called sublimation. Example, frost formation or cold morning. तो जो भी बर्फ जम जाती है प्लांट्स के ऊपर बहुत सर्दी के मौसम में, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं. And here we have completed in detail the changes in state of matter when the matter is exposed to heat or when it's removed from heat.
and we will start a new topic which is a solute, solvent and solution. So we'll understand what is a solute, what is a solvent and what is a solution. Solution का मतलब क्या है? यहाँ पे जब कोई भी दो चीज को मिक्स की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूट क्या है? जिस चीज को हम किसी भी चीज में मिक्स करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, यहाँ पे लाइव एग्जांपल। तो मेरे पास यहाँ पे है अ ग्लास ऑफ वाटर और यहाँ पे है अ स्पून ऑफ शुगर। तो यहाँ पे इफ यू विल सी, जो ये शुगर है ये क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो पानी में डिजोल्व हो सकता है, करेक्ट? तो अगर मैं इस शुगर को इस पानी में जब डिजोल्व करूंगी, जब ये पूरा शुगर इसमें डाइल्यूट हो जाएगा, मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और किस चीज का सॉल्यूशन बन जाएगा? शुगर का सॉल्यूशन बन जाएगा। यस, तो यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है? दैट इज अ सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो डिजोल्व किया जाता है। और सॉल्वेंट क्या है? जो उस चीज को डिजोल्व करने पे हेल्प करता है। तो ये जो पानी है ये इस शुगर को डिजोल्व करने पे हेल्प करता है। तो ये पानी क्या है? सॉल्वेंट है। और जो ये शुगर है ये सोल्यूट है। और जब ये शुगर इस पानी में डिजोल्व हो जाएगा तो जो तब हमें मिक्सचर मिलेगा उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। यस, तो जब तक हम इस टॉपिक को कवर करते हैं, वील सी इफ दिस गेट्स कंप्लीटली डिजोल्व टिल देन। सो सोल्यूट क्या है? अ सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजोल्व। तो सोल्यूट क्या है? वो सब्सटेंस है जो डिजोल्व होता है। ये सॉल्ट हो सकता है, ये शुगर हो सकता है, ये लेमन हो सकता है, ठीक है? तो सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट डज द डिजोल्विंग। मतलब जिस चीज पे हम इस सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और a solution is the resulting homogeneous mixture formed when the solute is dissolved in the solvent. तो a solution क्या है? वो एक मिक्सचर है जो फॉर्म होता है जब हम कोई भी सोल्यूट इज डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने रखा है वो सेम रखा है। अ स्पून ऑफ शुगर है, वाटर है यहाँ पे, और ये मिक्सचर है। तो शुगर क्या है? सोल्यूट है। मतलब वो चीज जो डिजोल्व किया जा सकता है, जिस चीज में वो डिजोल्व किया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पे वाटर है। और जब ये दोनों डिजोल्व हो जाते हैं आपस में तो ये एक जो मिक्सचर बनता है इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच सोल्यूट डिजोल्व्स इन अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो वो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब वो डिजोल्व होता है तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व्स एंड इज लेसर इन क्वांटिटी। तो सोल्यूट का एक और क्या है कि मैंने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक हाफ अ ग्लास ऑफ पानी लिया है, लेकिन जो मैंने शुगर का कंटेंट क्वांटिटी लिया है वो कितना लिया है? वो एक 1 स्पून लिया। तो क्वांटिटी किसकी कम है यहाँ पे? तो क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट विच इज शुगर इन दिस केस इज लेस। द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट डिजोल्व एंड इज लार्जर इन क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। तो जिस भी चीज में वो सोल्यूट को हम डिजोल्व कर रहे हैं और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इस केस में जो हमारा एग्जाम्पल है वो है वाटर। टुगेदर द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट फॉर्म्स द सॉल्यूशन। यस, फिर जब हम इन दो चीज़ों को यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, व्हेन आई एम मिक्सिंग दीज टू थिंग्स, अगर ये दोनों चीज़ें जो आपस में हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और एक लिक्विड फॉर्म पे रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। तो मतलब जब हम कोई दो चीज को मिक्स करते हैं, व्हेन आई एम मिक्सिंग एनी टू थिंग, एनी टू सब्सटेंस, और अगर वो उस पे पूरे अच्छे से घुल जाती है, मिक्स हो जाती है और एक मिक्सचर फॉर्म करती है, एक लिक्विड फॉर्म करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो सब्सटेंसेस दैट फॉर्म सॉल्यूशंस,
when they are mixed with a liquid are called soluble substances. Yes, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिखना भूल गई थी हमारे सॉल्वेंट और इन सब का, तो उनका मैंने यहाँ लिखा है। तो चलिए एक बार मैं आपको वो भी बता देती हूँ। सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर के इसमें सॉल्ट क्या है, सोल्यूट है। क्यों है? बिकॉज ये वो चीज़ है जो डिजॉल्व किया जा रहा है, और दूसरा जो इसकी क्वांटिटी है विच इज लेस इज डिजॉल्व इन वाटर, और इन दिस केस वाटर इज अ सॉल्वेंट, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और ये क्या करेगा, इसमें हम सोल्यूट को डिजॉल्व करेंगे टू फॉर्म सॉल्ट वाटर, जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं। लेमनेड, लेमन जूस जो सोल्यूट है, इसे हम मिक्स करते हैं पानी के साथ टू मेक अ लेमनेड, जो एक सोल्यूशन बनता है। एग्जाम्पल ऑफ सम, अब हम यहाँ पे बात करेंगे सोल्यूबल सब्सटेंसेस की। तो जो एग्जाम्पल है सोल्यूबल सब्सटेंसेस का जो पानी में पूरी तरह डिजॉल्व हो जाती है, जैसे मिल्क है, शुगर है, सॉल्ट है, उस हिसाब से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप देखेंगे तो अब इस जो शुगर की क्वांटिटी है देखिए वो एकदम कम हो गई है जो पहले के मुकाबले थी, और अब जो है ये इस मिक्सचर में जो ये शुगर है ये ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्या है, मिक्स्ड है, ऑन द वर्ज ऑफ डिजॉल्विंग है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ जो है वो पानी में या जिस भी चीज़ पे हम उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस को, अगर वो एकदम अच्छे से मिक्स हो जाती है, उसमें घुल जाती है, तो उसे हम सोल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी सब्सटेंस को जब हम पानी में मिक्स करते हैं और वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। चलिए आइए मैं बताती हूँ। यस, तो यहाँ पे है substances that do not form solutions when they are mixed with a liquid are called insoluble substances। मतलब जब हम कोई दो चीज को मिक्स करते हैं, किस चीज के लिए, एक सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए, कोई भी लिक्विड के साथ, बट दे डू नॉट फॉर्म सोल्यूशन, लेकिन वो आपस में मिलते नहीं है एक सोल्यूशन फॉर्म करने के लिए, तो उसे हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं। These substances do not get mixed and settle as different layers, और ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, and they can be visible as two different layers, जैसे कि liquids that do not water and oil, water and mustard oil। तो there are examples of insoluble, जैसे कि water and oil and water and पानी में कभी भी तेल जो है वो कभी भी प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है, और उसमें अगर हम जब भी उसको मिक्स करने के लिए ट्राई करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो जो है पानी अलग है और उसमें जो तेल है वो अलग रहता है। उसी तरीके से देयर आर टू मोर टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद दिस। वन इज मिसिबल लिक्विड्स एंड वन इज immiscible liquids। यस, तो यहाँ पे जानेंगे हम any two liquids that can mix in each other completely are called miscible liquids। तो मतलब जब कोई भी दो लिक्विड जो है that gets mixed, when any two liquids that can mix in each other completely are called miscible liquids। Liquids that completely dissolve in each other in any amount forming a single uniform mixture। तो जब हम कोई भी दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं और वो एकदम कंप्लीटली मिक्स हो जाती है, और मिक्स करने के बाद हमें एक सिंगल यूनिफॉर्म मिक्सचर बना के देती, तो उसे हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर एंड विनेगर, वाटर एंड मिल्क। जब भी हम मिल्क में पानी मिलाएंगे तो उसमें वो दोनों क्या है, सबसे पहली चीज दोनों लिक्विड है और वो आपस में एकदम मिल जाती हैं, और हमें मालूम नहीं पड़ता है कि वो पूरा मिल्क है या पूरा पानी है करके, या उसमें क्या पोर्शन है पानी और मिल्क का, तो उसे हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। उसी तरह जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं एंड दे डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इममिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। और दो लिक्विड्स जो यहाँ पे हम
ट्राई कर रहे हैं डिजॉल्व करने का, वो है वाटर एंड ऑयल। तो इसमें क्या रहता है, ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म पे हैं और ये डिजॉल्व नहीं होती हैं आपस में। लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स एंड रिमेन एज सेपरेट लेयर्स व्हेन कंबाइंड, और जो इनकी लेयरिंग रहती है वो एकदम अलग रहती है। सो टुडे व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड, सी जब तक हमने बात किया, अगर आप नोटिस करेंगे तो चीनी है वो पूरा इस पानी में डिजॉल्व हो गया। नाउ व्हाट इज इट, नाउ दिस हैज बिकम अ सोल्यूशन। ये जो हमारे पास है ये सोल्यूशन है और क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि इस पे मैंने दो चीज मिक्स की है, पानी और शुगर, और वो आपस में कंप्लीटली मिक्स होकर क्या बन गया है, एक सोल्यूबल सब्सटेंस बन गया है। यस, तो टुडे वी हैव कवर्ड the topics that we have covered today were freezing. We had done freezing, then we had done sublimation and deposition, and we had done few more topics like solute क्या होता है। solute is a substance that get dissolved, जो चीज घुल जाती है उसे हम solute कहते हैं। जिस चीज में हम solute को dissolve करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने के बाद जो हमें एक कंप्लीट एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। और इसका जो सबसे क्लासिक एग्जांपल है वो है सॉल्ट वाटर, लेमनेड वाटर एंड शुगर वाटर। इसमें जो चीज़ें ध्यान रखने की रहती है कि जो सोल्यूट की क्वांटिटी रहती है वो कम रहती है, जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ व्हाट वी हैड कवर्ड आर टू मोर अगेन टॉपिक, वन इज सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड वन इज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या हैं, सब्सटेंसेस दैट फॉर्म सॉल्यूशन व्हेन दे आर मिक्स्ड विद अ लिक्विड। तो जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो किसी लिक्विड में मिक्स हो जाता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, उसे हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। और उसी के विपरीत जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो किसी भी लिक्विड में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है उसे हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। और इनसॉल्युबल सब्सटेंस में क्या होता है, वो हमें जो हमने दो चीज को मिक्स किया है उसकी जो लेयरिंग है वो आपको सेपरेटली दिखेगी। इसी से मिलता जुलता हमने दो चीजें और क्या सीखी है, वन इज मिसिबल लिक्विड्स एंड द अदर वन इज इमिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स क्या होती है, जब कोई भी दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं और वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं मिसिबल। जैसे पानी एंड मिल्क है एंड विनेगर एंड वाटर है। ऑन द कॉन्ट्ररी जब हम दो लिक्विड को मिक्स करते हैं एंड दे डू नॉट गेट डिसॉल्व इन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर फॉर्म नहीं करते हैं, तो लिक्विड फॉर्म नहीं करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड immiscible liquids. Example are water and oil, water and mustard oil. And these all terminologies, my dear students, are very very important in this particular chapter, and there can be n number of questions asked and in these few topics that we have covered today. So make sure that you thoroughly watch the video and make notes so that you guys do not make any mistakes in your exam and the concept of these things are very clear to you. Yes, we'll meet again with a new topic in my next session. Tab tak ke liye bye bye and take care.